ڈیرہ غازی خان کے نواحی علاقے تھانہ کوٹ مبارک بستی تگیانی کے قریب پولیس مقابلے کے دوران لادی گینگ کا اہم رکن نور محمد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ دیگر ملزمان فرار۔ ڈی پی او عمر سعید ملک کی ہدایت پر مفرور ملزمان کی تلاش جاری۔ مرید کے جی ٹی روڈ کالا شاہ کاکو کے قریب سے نوجوان کی لاش برآمد۔ مقتول کی شناخت اکبر ولد اشرف کے نام سے کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق نامعلوم ملزم نے نوجوان کو شارک کاٹ کر قتل کیا اور بعد ازاں لاش کو سڑک کنارے پھینک دیا۔ تانگلیا والا کے نواحی گاؤں چک 450 مالے دی جھوک میں افسوسناک واقعہ۔ معمولی جھگڑے پر بھائی نے بھائی کو چاقو کے وار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ضروری کارروائی کے بعد ناش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ شیخو پورہ میں تیز رفتاری کے باعث حادثہ۔ ریس جیتنے کے جنون میں دو رکشوں کا مسافر کوچ سے تصادم۔ حادثے کے نتیجے میں رکشہ ڈرائیور اسد اور عزیز زخمی۔ فوری طبی امداد دینے کے بعد زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیالکوٹ میں ایس ایچ او تھانہ پھلورا عمران اسلم کی کارروائی۔ چوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث توقیر عرف پیڈا گینگ کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے 2 موٹر سائیکلیں، نقدی موبائل فون اور اسلحہ بھی برآمد۔ مقدمہ درج۔ سخی سرور میں چرس سمگل کرنے والا ملزم پولیس چیک پوسٹ پر گرفتار۔ ملزم کے قبضے سے 5 کلو گرام چرس برآمد۔ ملزم مزمل قدیر نے منشیات بیگ میں چھپا رکھی تھی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ اور کھپرو میں ہوا کی ایک اور بیٹی سسرالیوں کے تشدد کا شکار۔ اولاد نہ ہونے پر ساس اور دیورانی نے 24 سالہ ملوکی بھیل کو باندھ کر وحشیانہ تشدد کیا۔ سر کے بال بھی کاٹ ڈالے۔ پولیس ملزموں کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں۔ خاتون کی اعلیٰ حکام سے انصاف فراہم کرنے کی اپیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد جنید اعظم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان کے نواحی علاقے تھانہ کوٹ مبارک بستی تگیانی کے قریب پولیس مقابلے کے دوران لادی گینگ کا اہم رکن نور محمد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ دیگر ملزمان فرار۔ ڈی پی او عمر سعید ملک کی ہدایت پر مفرور ملزمان کی تلاش جاری۔ پولیس تھانہ کوٹ مبارک رات کے وقت گشت کر رہی تھی کہ بستی تگیانی کے قریب پہلے سے چھپے لادی گینگ کے ممبران نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے جوابی فائرنگ کی اور سرچ آپریشن کے دوران لادی گینگ کا اہم رکن نور محمد ولد صدیق اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ ملزم کے دیگر ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ملزم نور محمد سابقہ ریکارڈ یافتہ جس پر پہلے بھی قتل، اقدام قتل اور ڈکیتی جیسے سنگین نوعیت کے 8 فوجداری مقدمات درج ہیں۔ ملزم نور محمد 2 پولیس اہلکاروں محمد رفیق اور محمد یاسر پر فائرنگ کرنے کے کیس میں بھی نامزد تھا۔ کراچی رینجر سندھ کا کسٹم حکام کو سمگلنگ کی روک تھام میں تعاون فراہم۔ جیکب آباد اور کشمور میں سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پر واقع عبدالجبار شہید اور گڈو چیک پوسٹ پر کارروائی کی گئی۔ نان کسٹم پیڈ اشیاء کی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ کارروائی کے دوران ایک عدد نان کسٹم پیڈ ٹویوٹا کرولا گاڑی بھی ضبط کی گئی۔ نان کسٹم پیڈ اشیاء میں ایک ٹویوٹا کرولا کار، 83 ٹائرز، سگریٹ کے 100 پیکٹ، 282 لیٹر ایرانی انجن آئل، 3 ہیڈ سلنڈر، 4 وین انجن، 2 کرولا کار اور 95 عدد رولز کپڑا برآمد کر لیا گیا۔ پشاور میں ایس ایس پی آپریشنز یاسر آفریدی کا گل بہار امامیہ کالونی جلوس کی سیکیورٹی روٹس کا دورہ۔
यासिर अफरीदी ने सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया। जुलूस के दौरान कोरोना SOPs के हवाले से खुसूसी ताकीद की गई। इस मौका पर SP सिटी अतीक शाह और DSP गुलबहार जाहिद आलम ने SSP ऑपरेशंस को सिक्योरिटी इंतजामात से आगाह किया। SSP ऑपरेशन यासिर अफरीदी का कहना था कि मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनकाद के हवाले से अभी से काम कर रहे हैं। मुरीद के GT रोड काला शाह काकू के करीब से नौजवान की लाश बरामद। मकतूल की शनाख्त अकबर वल्द अशरफ के नाम से कर ली गई। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुलजम ने नौजवान को शाहरग काट कर कत्ल किया और बादिज़ां लाश को सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शाहरग काट कर कत्ल किया गया। मकतूल की पहचान अकबर वल्द अशरफ सकना नजराबाद मुरीद के से हुई है। मकतूल कबाड़िये का काम करता था। शेखुपुरा में मैट्रिक के तालिब इल्म पर डॉल्फिन पुलिस एहलकारों का तशद्दुद। मुतासरा तालिब इल्म वलीद के वालिदैन और दीगर तालिबा का एहतजाज। DPO शेखुपुरा SN सैफ उल्लाह ने नोटिस लेते हुए तशद्दुद करने वाले डॉल्फिन एहलकारों आमिर और अजमल को मुअत्तल कर दिया। मुतासरा तालिब इल्म का कहना है कि वो अपने दोस्तों के हमरा हाउसिंग सोसाइटी में अपने घर जा रहा था कि डॉल्फिन एहलकारों ने इसे रोक लिया और वजह पूछने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद की CCTV फुटेज भी मंजरेआम पर आ गई। पेशावर में जिला इंतजामिया की जानिब से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में खुली कचहरी का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड खालिद महमूद ने अवामी मसाइल सुने और फौरी हल के अहकामात जारी किए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अवामी मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर पेशावर कैप्टन रिटायर्ड खालिद महमूद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इमरान खान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर एहतशाम उल हक और एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर आदिल वसीम समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौका पर लोगों ने अफसरान को अपने मसाइल के बारे में बताया। इलाके में बिजली और सुई गैस की लोड शेडिंग से आगाह किया गया। ठरी मीरवा में पुलिस का कब्जा माफिया से मुबैना गठजोड़। दस्ती बरादरी के मुतासरीन सिरापा एहतजाज बन गए। मुतासरीन का कहना है कि उनके पास जमीन की मलकियत के कागजात मौजूद हैं। आला हुकाम इंसाफ फ्राहम करें। इस मौका पर दीदार अली और दीगर मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि उन्होंने ये प्लॉट 1994 में इजहार अली नामी शख्स से खरीदा था, मगर अब जबरदस्ती हमारे प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस भी इजहार और मजहर नामी मुखालफिन का साथ दे रही है। मुतासरीन का कहना है कि पुलिस की जानिब से इन्हें बिला जवाज तंग किया जा रहा है। आला अफसरान इंसाफ फ्राहम करें। रावलपिंडी में कमिश्नर सैयद गुलजार हुसैन शाह के जेर निगरानी तहसील ऑफिस राजा बाजार में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इन्नेकाद किया गया। कचहरी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैप्टन रिटायर्ड कासिम इजाज, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वकास सिकंदरी, सब रजिस्ट्रार जुल्करनैन अब्बास, जैलदार नायब तहसीलदार गुरुद्वार और पटवारियों के अलावा साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन सैयद गुलजार हुसैन शाह का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक हर माह के पहले दफ्तरी दिन को डिप्टी कमिश्नर ता रेवेन्यू अमला एक छत के नीचे शहरियों की खिदमत के लिए मौजूद होकर मसाइल का मौके पर हल यकीनी बनाएंगे। हमारी सर्विस का बुनियादी मकसद लोगों से हुस्न सलूक से पेश आना और उनके मसाइल के हल के लिए ठोस इकदाम करना है। शेखपुरा में तेज रफ्तारी का बायस हादसा। रेस जीतने के जुनून में दो रिक्शों का मुसाफिर कोच से तसादुम। हादसे के नतीजे में रिक्शा ड्राइवर असद और अजीज जख्मी हो गए। फौरी तिब्बी इमदाद देने के बाद जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली मुसाफिर बस से रेस लगाते दो रिक्शे बेकाबू होकर सब्जी मंडी के करीब खड़ी मुसाफिर कोच से जा टकराए, जिसके नतीजे में रिक्शा ड्राइवर असद और अजीज जख्मी हो गए। सियालकोट में SHO थाना फलूरा इमरान असलम की कार्रवाई। चोरी और डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस तोकीर उर्फ पेडा गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से 2 मोटरसाइकिलें, नकदी, मोबाइल फोन और असलहा भी बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO का पुलिस टीम को तारीफी असनाद और नकद इनाम देने का ऐलान। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी की हुसूसी हिदायत और SDPO DSP पसरूर सर्कल की जेर निगरानी SHO थाना फलूरा सब इंस्पेक्टर इमरान असलम और पुलिस टीम ने कार्रवाई की। तौकीर उर्फ पेडा गैंग के मुलजमान तौकीर उल हसन उर्फ पेडा और फैसल सकना गुल चाहल पसरूर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से माल मसरूका में 2 मोटरसाइकिलें, 34,500 रुपए नकदी, 2 मोबाइल फोन और 2 30 बोर पिस्टल समेत मुतअद्दिद गोलियां बरामद की गई।
मुल्तान नेशनल अस्पताल में लेडी डॉक्टर माहम टिकटॉक की दीवानी, मरीजों को अमले के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। मरीज और उनके लिवाहिकीन को परेशानी का सामना, सीईओ हेल्थ से नोटिस लेने की अपील, लेडी डॉक्टर माहम की जगह किसी फर्जशनास डॉक्टर को तैनात करने का मुतालिबा। मसीहा भी टिकटॉकर बन जाएं तो मरीज कहां जाएं। मुल्तान के नश्तर अस्पताल की डॉक्टर माहम दिन भर टिकटॉक बनाने में मसरूफ रहती हैं। चेकअप के दौरान टिकटॉक वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉक्टर माहम इंजेक्शन लगाने से पहले भी वीडियो बनवा रही हैं। ड्यूटी के दौरान बनाई गई वीडियो टिकटॉक पर वायरल की जाती है। सखी सर्वर में चर्च स्मगल करने वाला मुलजम पुलिस चेक पोस्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम के कब्जे से 5 किलो चर्च बरामद कर ली गई। मुलजम मुजम्मल कदीर ने मंशियात बैग में छुपा रखी थी। मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। एसएचओ थाना सखी सर्वर इफ्तिखार अहमद मलकानी का कहना है कि दौरान चेकिंग सुबह बलूचिस्तान से आने वाली कोच में सवार मुलजम से 5 किलोग्राम चर्च बरामद हो गई। मुलजम मुजम्मल कदीर सरकारी मुलाजिम भी है। सखी सर्वर पुलिस ने मुलजम को चर्च समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तांदलियावाला के निवाही गांव चक 450 माले दी झोंक में अफसोसनाक वाकया। मामूली झगड़े पर भाई ने भाई को चाकू के वार करके मौत के घाट उतार दिया। जरूरी कार्रवाई के बाद नाश वर्सा के हवाले पुलिस ने मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तांदलियावाला के रिहायशी खालिद का अपने भाई खालिद के साथ मामूली झगड़ा हुआ, जिस पर खालिद ने पिस्तौल निकाल लिया, मगर अहले मोहल्ला ने पिस्तौल छीन लिया। बादिजा खालिद ने चाकू के वार करके अपने भाई खालिद को शदीद जख्मी कर दिया, जिसे तशवीशनाक हालत में डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। खबरों में हवा की एक और बेटी ससुरालियों के तशद्दुद का शिकार। औलाद न होने पर सास और देवरानी ने 24 साला मलोकी भेल को बांधकर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। सर के बाल भी काट डाले। पुलिस मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। खातून की आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने की अपील। जैकबाबाद में स्याकारी का इल्जाम 3 अफराद की जान ले गया। देरीना रंजिश पर मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके मंदरानी कबीले के 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। अफसोसनाक वाकया थाना दादूपुर के निवाही गांव कायम दीन मंदरानी में पेश आया, जहां बहक होने वालों में गुलाम मुस्तफा, हक नवाज और कादन मंदरानी शामिल हैं। इतला मिलने पर पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई और मकतूलीन की लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुतलका अस्पताल गड़ी खैरू मुंतकिल कर दिया गया। मूसा खेल की तहसील तुई सर लेवीज थाने के एहलकारों ने निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर इसराफील को गिरफ्तार कर लिया। इसराफील ने लेवीज थाना तुई सर में एहलकारों को जुआ खेलने की खबर से आगाह किया था। डीसी अफजल खुस्ती ने खबर नशर होने पर मुबैना तौर पर निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर इसराफील को उसके घर से गिरफ्तार करवा लिया। गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफी बिरादरी की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। टंडोजाम में औबाश की 6 साला कमसिन बच्चे से जिनसी ज्यादती। एसएसपी हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख का नोटिस। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नारू उर्फ राजू नामी मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज थाना टंडोजाम की हुदूद गोट मुराद शाह में 6 साला बच्चे से ज्यादती की शिकायत टंडोजाम पुलिस को मौसूल हुई। एसएसपी हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख ने नोटिस लेते हुए एसएचओ टंडोजाम को मुलजम की फौरी गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी किए। संझोरों में एसएचओ गुलाम शब्बीर की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। मुकामी दुकान पर छापा मारकर 3 किलो चर्स और 28 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। एक खातून समेत 4 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान में 3 भाई शाहिद, अली, रजा और शहजाद शामिल हैं, जबकि गिरफ्तार खातून की शनाख्त सुरैया जोजा शाहिद के नाम से की गई है। तलहार के निवाही गांव फतेह खान लगारी में जरई जमीन पर कब्जा। मुतासिरीन अपनी मिल्कियती जमीन पर कब्जे के खिलाफ सिरापा एहतजाज बन गए। आईजी सिंध और आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। इसरार हुसैन और दीगर मुतासिरीन का कहना है कि उनके चचा ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। जमीन वापस मांगने पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आला हुकाम हमारी जमीन से कब्जा खत्म करवा के हमें इंसाफ फराहम करें। खैरपुर नातहन शाह के निवाही गांव दाइम गाड़ी में गाड़ी बिरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम। डंडों और कल्हाड़ियों के आजादाना इस्तेमाल से एक शख्स कत्ल, 2 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। मकतूल के वालिद
حسین بخش کا کہنا ہے کہ رات کے وقت باثر لوگ ہمارے گھروں کے سامنے نشہ کر کے فائرنگ کر رہے تھے۔ روکنے پر ارض محمد خان گاڑی، اشفاق علی جان صدام، رؤف گاڑی اور دیگر نے ہم پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں میرا نوجوان بیٹا فرمان گاڑی قتل ہوا۔ میلسی میں جگہ جگہ منشیات کے اڈے، نوجوان نسل منشیات فروشوں کے ہاتھوں تباہ ہونے لگی۔ بدنام زمانہ منشیات فروشوں کو مبینہ رشوت لے کر پولیس نے چھوڑ دیا، اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ بدنام زمانہ منشیات فروشوں عمران راشد محمود اور عثمان کو شراب سمیت پکی کوٹھی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس نے مبینہ رشوت لے کر ملزمان کو چھوڑ دیا۔ علاقے میں بڑھتی ہوئی منشیات فروشی اور جرائم کی وجہ سے علاقہ مکین اذیت میں مبتلا ہے۔ پھالیا کے نواحی گاؤں سرلے خرد کے بہادر سپوت کو قوم کا سلام۔ لانس نائک پرویز احمد نے وطن عزیز پر جان نثار کر دی۔ لانس نائک پرویز احمد کو ان کے آبائی گاؤں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید پرویز احمد شمالی وزیرستان میں پاک افغان بارڈر پر قائم آرمی چیک پوسٹ 2 پر فرائض سر انجام دے رہے تھے کہ دہشت گردوں نے اچانک حملہ کیا، جس کا پاک فوج کے جوانوں نے بھرپور انداز میں جواب دیتے ہوئے دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ ننکانہ صاحب میں پیٹرولنگ پوسٹ نے دیسی گھی کے نام پر شہریوں کو زہر کھلانے والے گروہ کو پکڑ لیا۔ لاہور سپلائی کے لیے جانے والا 50 من سے زائد مضر صحت دیسی گھی برآمد، ایک شخص گرفتار کر لیا گیا۔ پیٹرولنگ پوسٹ انچارج چیک پوسٹ رائے بشیر احمد کی سربراہی میں آصف خان، عبد المجید، عمران خان اور شہباز خان پر مشتمل خصوصی ٹیم نے کارروائی کی۔ دوران چیکنگ مشکوک گاڑی سے لاہور سپلائی کے لیے جانے والا 50 من سے زائد مضر صحت دیسی گھی برآمد کر لیا گیا۔ حجرہ شاہ مقیم میں پی ٹی آئی رہنما احمد حسن پر قاتلانہ حملے کی کوشش، 10 مسلح افراد نے احمد حسن کے ڈیرے میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کی۔ رہنما پی ٹی آئی احمد حسن گجانہ بال بچ گئے۔ فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ سٹی صدر پی ٹی آئی احمد حسن گجانہ کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمے میں گزشتہ دنوں گواہی دینے کی پاداش میں مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ حجرہ شاہ مقیم موقع پر پہنچ گئی۔ ننکانہ صاحب میں سلاٹر ہاؤس کی فیس میں دگنا اضافہ، انتظامیہ کے امتیازی سلوک کے خلاف کسابوں نے ہڑتال کر دی۔ کہتے ہیں انتظامیہ کے ریٹ کے مطابق گوشت بیچنا ممکن نہیں۔ کسابوں کا کہنا ہے کہ جان بوجھ کر انتظامیہ نے سلاٹر ہاؤس کی فیسوں میں 2 گنا اضافہ کیا۔ سلاٹر ہاؤس انتظامیہ نے چھوٹے جانور کی فیس 50 سے 100 روپے اور بڑے جانور کی فیس 100 سے 200 روپے کر دی ہے۔ 2 گنا ٹیکس لگانے کے بعد انتظامیہ کے ریٹ کے مطابق گوشت بیچنا ممکن نہیں ہے۔ بہاول نگر میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارڑ نے کہا ہے کہ رواں سال کے اختتام تک پنجاب میں 8000 دیسی مال مراکز قائم کر دیے جائیں گے۔ صوبہ بھر میں 807 مراکز بنا دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عابد حسین بھٹی اور متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز محمد طیب اور عثمان منیر بخاری بھی موجود تھے۔ سینئر ممبر بورڈ بابر حیات تارڑ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار عوام کو شاندار سروس ڈیلیوری دینے کے لیے کاوشیں بروئے کار لا رہے ہیں اور دہی مراکز مال کا پروجیکٹ عوام کو ان کے ریونیو سرکل اور دیہاتوں میں خدمات فراہم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بننے جا رہا ہے۔ محمود بوٹی سب ڈویژن کا میٹر ریڈر معطل، ایکسین باغبان پورا رب یار کا محکمہ میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف بڑا ایکشن، غفلت برتنے اور کرپشن میں ملوث ہونے پر میٹر ریڈر عمران کو معطل کر دیا۔ ایکسین باغبان پورا کہتے ہیں کہ محکمے میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ محمود بوٹی سب ڈویژن کا میٹر ریڈر معطل کر دیا گیا۔ ایکسین باغبان پورا ربیار کا محکمہ میں موجود کالی بھیڑوں کے خلاف بڑا ایکشن، غفلت برتنے اور کرپشن میں ملوث ہونے پر میٹر ریڈر عمران کو معطل کر دیا۔ ایکسین باغبان پورا کہتے ہیں محکمے میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے حافظ عرفان سے۔ جی عرفان، یہ کیا معاملہ ہے، بتائیے گا۔ چیف لیسکو کی احکامات پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایکسین باغبان پورا کی جانب سے کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔
اور महमूद बूटी सब डिवीजन का मीटर रीडर इमरान काम में गफलत बरतने और करप्शन में मुलव्वस पाए जाने पर मुअत्तल किया गया है। मैं बताता चलूं कि चीफ लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन की जानिब से बिजली चोर और उनकी सरपरस्ती करने वाले महकमे में छुपी काली भेड़ों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कार्रवाई के सख्त अहकाम जारी किए गए थे ताकि महकमा को करप्शन से पाक किया जा सके, जिसकी वजह मिसाल एक्शन भगवानपुरा की जानिब से महकमे के लिए जिल्लत का सबब बनने वाले करप्ट मीटर रीडर इमरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए मुअत्तल करना है। जी शुजाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम परेशान। शदीद गर्मी में घंटों बिजली की बंदिश ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। शुजाबाद में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग भी शुरू कर दी गई है। घंटों बिजली की बंदिश की वजह से अवाम का बुरा हाल है। 3 से 4 घंटे बिजली गायब रहने लगी। बिजली ना होने की वजह से पानी की किल्लत भी देखने में आई। कयामत खेज गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग किसी अजाब से कम नहीं। अवाम सिरापा एहतजाज बन गए, फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर सिविल डिफेंस लाहौर के अफसरान मुतहरक। गैर कानूनी तौर पर एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस मुंतकिल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। दर्जनों गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। अलग अलग मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर सिविल डिफेंस के अफसरान मुतहरक हैं। गैर कानूनी तौर पर एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस मुंतकिल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। दर्जनों गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। अलग अलग मुकदमात भी दर्ज करवा दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मलिक आयान से। जी आयान, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर जो है लाहौर भर में सिविल डिफेंस के जो अफसरान हैं उनकी कार्रवाई है। आज लाहौर में डीसी की हिदायत पर जो है सिविल डिफेंस के अफसरान ने पूरे लाहौर में मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है मुख्तलिफ अफसरान ने जाकर अब खुद जो है कार्रवाइयाँ की हैं। कार्रवाई के दौरान जो है जहाँ जहाँ पर जो गैस फिलिंग हो रही थी, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जो गैस की फिलिंग हो रही थी, उसके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ की गई हैं। सिविल डिफेंस के तमाम अफसरान जो है अलग अलग टीमों के हमरा जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग आज दूसरे रोज जो है वो निकले हैं। सीडीओ इरफान की हिदायत पर जो है उनकी टीमें यहाँ पर रवाना हुई हैं, जिसके बाद जो है जहाँ जहाँ पर खिलाफ वर्जियां पाई गई हैं उनके खिलाफ पूरी तौर पर उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी दुकानों को सील किया गया है। उनको गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ मुकदमात का भी इंदराज करवा दिया गया। सीडीओ इरफान की जानिब से जो तफसीलात बताई गई हैं उसके मुताबिक जो आज 53 FIR जो है आज दूसरे रोज जो है दर्ज की गई हैं। और सीडीओ इरफान ने कहा है कि तमाम तर जो कार्रवाइयाँ की गई है लाहौर के अंदर वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर की गई है। और डीसी लाहौर की मजीद की हिदायत है कि जहाँ पर भी ऐसी शॉप्स मिले जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर गैस फिलिंग जारी है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज भी करवाया जाए। उसी को नक्शे करने पर चलते हुए जो तमाम सिविल डिफेंस के अफसरान है वो रोजमर्रा की बुनियाद पर जो है रोजाना गैस फिलिंग की जो दुकानें हैं वहाँ पर देखेंगे और वहाँ पर जहाँ जहाँ गैर कानूनी तौर पर गैस फिलिंग हो रही है उनके खिलाफ फौरी तौर पर जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी मलिक आयान, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मियानी में ईंटों के भट्टों को नई टेक्नोलॉजी ज़िग-ज़ैग पर मुंतकिल करने के सिलसिले में एक तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील भेरा के भुट्टा मालकान और मजदूरों ने शिरकत की। वर्कशॉप में असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात सरगोदा अली इमरान मलिक, राना मोहम्मद इकबाल, मेहर आजम और दीगर ने नई टेक्नोलॉजी के बारे में तरीके बताए। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात अली इमरान मलिक ने कहा कि अब पुरानी तर्ज पर भट्टा खश्त पर मुकम्मल पाबंदी लग चुकी है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना है।